ओके गाइस, सो अभी जैसे आप सभी को पता है दैट आई एम नॉट डूइंग मच ट्रेडिंग. आई एम स्पेशली नॉट डूइंग एनी लाइव ट्रेडिंग, राइट? एंड द रीज़न इज़ आई एम इन बिटवीन माई हाउस शिफ्टिंग एक्टिविटीज़, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन ट्रेडिंग. एंड इसी के चलते आई थिंक टुडे आई मिस्ड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी to make some good profits, because it was clearly visible Nifty is going below 15,600, right? Somewhere around 11:15 a.m. Somewhere around 10:45 a.m. today, I had taken a position in 15,600 PE buy position. I had bought 15,600 PEs at around 35 to 40 rupees, in that range. My average buy price was around 40 rupees, and as soon as it reached 45, that P had closed that position. And the reason was, again, like I said, because when we are shifting house, so like how hectic is that, right? And then rest of the day I couldn't trade at all. I didn't get any time to trade. And finally I ended up making no I ended up missing an opportunity on a day. Like, it was pretty possible I could have made a very very decent profits, right? That 15,600 PE, it actually reached 200 plus. So I sold it at around 45, and it actually closed around above 200 points. I think it went to 250 or 300, but yeah, definitely 100 to 150 points were very much possible in that one-sided down mood of Nifty today, right? So uh, it's okay, it's done. What is done is done. I cannot revert that. But what's the important point here is, the purpose of making this video is not to talk about this particular incident, like I couldn't trade. This is not the reason of making this video. The reason is I want to bring up certain very important quotes from a very good book. The book is by Mr. Ankur Wariku, who is the founder of Nearby, right? And the book's name is Do Epic Shit. Right, the name is funny, but the book is actually great. The book is really good, right? And like I said in my previous video in this series, that is the wisdom from the books. What I will do whenever I get some time, I will read out certain chapters or certain quotations from the books to my audience, so that they can get some pearls of wisdom from those who are who have given them in terms of their in the way of their writings or something like that, right? तो इनका पहला कोटेशन जैसे मैं पढ़ता हूँ, व्हाट देयर ही इज सेइंग, योर ग्रेड्स इन कॉलेज आर नॉट गोइंग टू डिफाइन योर लाइफ. योर ग्रेड्स in college are not going to define your life. Your first company and the work in your first company is not going to define your life. Your first pay package is not going to define your life, right? मतलब कि आप किस कॉलेज में गए हैं, उसमें आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं, ना तो वो आपकी लाइफ को डिफाइन कर सकता है. आपकी पहली कंपनी कौन सी थी, उसमें आपने कितनी सैलरी हासिल की, राइट? वो भी आपकी लाइफ को आगे डिफाइन नहीं कर सकता. उस पहली कंपनी में आपने क्या काम किया, वो भी आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकता. ऐसा क्यों, राइट? क्योंकि लाइफ इज़ प्रिटी बिग, राइट? वॉट एवर वी आर डूइंग, वॉट एवर हैज़ बीन आर पास्ट, that cannot be used to limit the potential of the future, right? I will repeat my words. हमने अपने पास्ट में क्या किया है, that should not create a restriction in our life. That should be an enabler in our life going further. There should not be a restriction in my life, right? For example, I am a software engineer. मेरा करीब 14-15 साल का एक्सपीरियंस है. मैंने एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, बैक एंड डेवलपर, आर्किटेक्ट, टीम लीड, टेक लीड, स्क्रम मास्टर, आई प्लेड मल्टीपल रोल्स इन माई कैरियर. अब मैं यदि उसको पकड़ के बैठ जाऊँ एंड आई से लाइक कि नहीं, मुझे यही करना है, तो फिर तो मैं ट्रेडिंग कर ही नहीं पाऊँगा, राइट? सो जो हमारा पास्ट है, वॉट एवर वी हैव डन इन आर पास्ट सो फार, दैट शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट अस, दैट शुड नॉट दैट शुड नॉट लिमिट अस फ्रॉम डूइंग वॉट वी वॉन्ट टू डू इन द फ्यूचर, करेक्ट? तो वाई एम कोटिंग दिस टुडे इज़ बिकॉज आज एक ऐसा दिन था जिसमें मेरी तरह कई लोगों ने पैसा बनाने का मौका खोया होगा, और आज एक ऐसा भी दिन था जिसमें
कई लोगों ने पैसा गंवाया भी होगा, डेफिनेटली ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज बहुत बढ़िया पैसा बनाया है शॉर्ट कर करके, राइट, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज पैसा खोया होगा और जिन्होंने आज पैसा बनाने का मौका भी खोया होगा, ऐसे भी बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो आपका आज का इंसिडेंस, योर टुडेज इंसिडेंस शुड नॉट डिफाइन हाउ यू आर गोइंग टू लीड द लाइफ फ्रॉम टमोरो, ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड नहीं होना है अगर आप पैसा आज नहीं बना पाए हो या फिर आज आपने पैसा खोया है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। जैसे कि अंकुर वारिकू ने अपनी इस बुक में कहा है, राइट, आपके कॉलेज की ग्रेड्स, आपका पहली कंपनी का जॉब या सैलरी आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। उसी तरह आज के मार्केट क्रैश में अगर आप पैसा नहीं बना पाए हैं, दिस कैन नॉट define your life going forward, right? This is the first point that I want to tell. Second is अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, राइट, इट्स वेरी कॉमन, आपकी लाइफ में यदि ऐसे लोग हैं जो आपकी टांग खींचते रहते हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हैं, नकारात्मकता ला रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपका फोकस किसी और जगह पर है एंड दे वांट टू टेक योर फोकस टू समवेयर एल्स विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि आप जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं उसमें कितना पोटेंशियल है, उसको समझे बिना यदि वो आपके फोकस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से अलग कर दीजिए। जस्ट फायर दूस पीपल फ्रॉम योर लाइफ, सिंपल, राइट। नोबडी इन द लाइफ, nobody in this world can restrict you from achieving what you want to achieve in your life, ठीक है। देखिए दो तरह की रेस्ट्रिक्शंस पैदा करने वाले लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो वाकई में हमारी केयर करते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए कंसर्न है। अगर इस तरह के लोग आपकी लाइफ में हैं तो उनके साथ बैठिए, उनके साथ कन्वर्सेशन कीजिए और उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, अपना एक्शन प्लान उनको समझाइए, दे विल सपोर्ट यू। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो 90% होते हैं एक्चुअली में, दे विल जस्ट ट्राई टू पुल योर लेग। वो खुद नहीं कर पाए अपनी लाइफ में कुछ, आपको भी नहीं करने देंगे। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से अलग कर दीजिए, सोचिए मत ज़्यादा, जस्ट सिंपली फायर देम फ्रॉम योर लाइफ, मूव ऑन फ्रॉम दोज पीपल, राइट। दिस इज द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू कोट यू। थर्ड वन इज, आप अपने टाइम का कैसे यूज़ करते हैं, हाउ यू स्पेंड योर टाइम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के पास है, राइट। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, यू हैव एक्सेस टू यूट्यूब। एंड इफ़ यू हैव एक्सेस टू यूट्यूब, या तो आप अपने लैपटॉप पर देख रहे हैं या फिर आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, करेक्ट। आप उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कैसे करते हैं, दैट इज़ प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर लाइफ। द काइंड ऑफ स्टोरीज यू हियर, राइट, सॉरी, who you spend time with will define the stories you hear। ये जो लाइन्स अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये फिर से मिस्टर अंकुर वारिकू की बुक से है, डू एपिक शिट, बहुत बढ़िया लिखा है। who you spend time with will define the stories you hear, the stories you hear will define the stories in your head, the stories in your head will define you, so choose who you spend time with wisely, करेक्ट। आपके पास टेलीविज़न सेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, या तो आप नेटफ्लिक्स पे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा डेली मूवी देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, या फिर आप वही टाइम अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए स्पेंड कर लो। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, यू कैन स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन लर्निंग द न्यू स्किल्स, लर्निंग द न्यू स्ट्रेटजीज टू मेक मनी इन द मार्केट, राइट। तो टाइम तो उतना ही है सबके पास, मीडियम भी सभी के पास वही सेम ही है। आज की तारीख में फाइबर, ब्रॉडबैंड फाइबर इज़ वेरी कॉमन, राइट। वही बोल रहा हूँ, उसका इंटरनेट का मंथली पैसा उतना ही देने वाले हो, ठीक है, टाइम भी आप उतना ही स्पेंड करने वाले हो। वो स्पेंड कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है। ट्विटर पे जाके या तो आप ट्रोलिंग कर लो लोगों की जो पैसा बना रहे हैं या जो कुछ गलत कर रहे हैं, या तो उनको जाके आप ट्रोल कर लीजिए, या फिर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे कुछ सीख लीजिए,
समय आपके पास उतना ही है, एनर्जी भी आपके पास उतनी है, आपकी मेंटल कैपिटल भी उतनी ही है, रिसोर्सेज भी आपके पास उतने ही हैं। आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो, दैट विल डिसाइड कि आप आगे जाके अपनी लाइफ को कैसे क्राफ्ट करेंगे, कैसे उसको शेप देंगे, राइट। सो द पीपल यू स्पेंड टाइम विथ, यहाँ पे इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल। आज की तारीख में केवल एक फिजिकल पर्सन ही हमारी संगत नहीं होती। हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, ये हमारा बहुत बड़ा कंपेनियन है। उस पर हम क्या देख रहे हैं, उस पर हम क्या सुन रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो उस आई विल से द कंटेंट यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ। मैं अंकुर वारिकू की इस कोटेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। द कंटेंट दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ will create the stories in your mind, and the stories that you are creating in your mind will actually create you. So very important that you spend time with the correct content, not just anything stupid. ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और है आज की तारीख में। आज की तारीख में क्या, ये तो हमेशा ही रहती है, हम कंफ्यूज्ड हैं, हम डीमोटिवेटेड हैं, हमें क्लैरिटी नहीं, हमें करना क्या है। तो यू आर नॉट द ओनली वन कन्फ्यूज्ड। सिर्फ आप ही नहीं है जो कन्फ्यूज्ड है, आप ही नहीं है जो डीमोटिवेटेड है, आप ही नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे लोग भरे हुए हैं, 60-70%, शायद छोटा नंबर बोल रहा हूँ, पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। उसमें से बाहर कौन निकलेगा? जो अपना एक एक्शन प्लान बनाएगा, जो अपना एक एक्शन प्लान बनाएगा। एक्शन प्लान कैसे बनाएगा? फिर वही बात घूम फिर के वहीं आती है कि आप किस तरह का कंटेंट देखने में टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो पहले तो अपनी संगत सुधारिए। संगत सुधारने का मतलब जिन लोगों के साथ आप हैं उस पर सिलेक्टिव रहिए। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उसमें सिलेक्टिव रहिए। जब आप उसमें सिलेक्टिव रहोगे, जब आप ऐसे कंटेंट और ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे जो कि आपके गोल के साथ अलाइंड हैं, तब आपके पास राइट इनपुट्स आएंगे। जब आपके पास राइट इनपुट्स होंगे, राइट इन्फॉर्मेशन होगी, देन एक्चुअली यू विल बिल्ड द कैपेबिलिटी टू मेक द राइट एक्शन प्लान। और जब आप राइट एक्शन प्लान बनाओगे तभी आपको क्लैरिटी आएगी। जब आपके पास क्लैरिटी आएगी तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपके पास क्लैरिटी होगी और जब आपके पास राइट एक्शन प्लान होगा, तभी आप सही काम कर पाओगे। जब आप सही काम कर पाओगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू ओवरकम योर स्ट्रगल्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू ओवरकम योर डिसअपॉइंटमेंट्स, then only you will be able to overcome your confusions. So it's again all everything boils down to you, जो कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, right? Today this present moment is the best gift by the Almighty, and how you live this day today, how you spend this time today is your return gift to the Almighty. बेसिकली वो Almighty के लिए रिटर्न गिफ्ट नहीं है, वो आप ही के लिए रिटर्न गिफ्ट है कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, करेक्ट। So that's very important. And जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, मार्केट में हम कितनी जल्दी पैसा बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। सी अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू योर स्किल्स। अपने स्किल पर काम कीजिए, अपना आपका स्किल सेट बढ़ेगा। नोबडी कैन टेक अवे योर स्किल्स फ्रॉम यू, राइट। समबडी कैन टेक अवे योर जॉब, somebody can take away it is possible, like there might be certain days you might not be able to work in the market, in the derivative market, in the stock market, जैसे कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। बट अगर आपके पास स्किल्स है तो ना तो मार्केट कहीं भागा जा रहा है, ना ही दुनिया कहीं भागी जा रही है। आपको नई जॉब भी मिल सकती है तो आप पैसा बना सकते हो। सो वर्क ऑन योर स्किल्स सर, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि इस बुक में है, डू एपिक शिट। बेसिकली आप कोई भी बुक उठा लो यार, जो सक्सेस का फंडामेंटल्स हैं, व्हाट यू नीड टू डू टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, वो फंडामेंटल्स चेंज नहीं हो पाएंगे। एवरी ऑथर, कोई भी ऑथर होते हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव से अपना दिमाग लगा के, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपने सोचने के तरीके के बेसिस पर, अपनी बात कहने के तरीके के बेसिस पर उन्हीं फंडामेंटल्स को अलग तरीके से सामने रख देते हैं, राइट। तो कोई एक बुक पकड़ के भी अगर आप पढ़ लेते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो लाइफ में, देन इट विल बी ग्रेट। अब ओबियसली बुक पढ़ने का आजकल टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के। इनमें से यदि कोई एक बात भी आप अगर पकड़ लेते हैं, दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर, राइट। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ दिस वीडियो
was helpful for you or not. Right. कुछ लोगों ने माइक की बोली है. सी मैंने माइक तो यूज़ में कर रहा हूँ. आई विल शो यू. सी दिस इज़ द माइक. आई एम यूजिंग दिस माइक नाउ. तो प्लीज़ लेट मी नो the audio quality of this video. Your reviews will be really helpful. Thank you so much.